morning, students. Today we are going to deal with the second chapter of your resolution book named Bholi, written by K.A. Abbas. I am dealing with the overall theme of the story. Whatever I am going to deal will clear the complete chapter to you. Bholi is a story written by K.A. Abbas. The story revolves around a girl who, due to accidental fall and disease in her childhood, faces the problem of being dull and ugly. She is always a target by everyone who for not being good looking and intelligent. Her life turns when she joins a nearby school where her teacher encourages her and helps her to become a learned and confident person. Later in the story, circumstances arise where Bholi has to give acceptance to the marriage with an unequal match but rejects it when she sees her father pleading to the bridegroom when he demands dowry. The story shows the rise of a girl against social injustice. Now, this is the theme of the story actually. Introduction to the lesson is actually the theme of the story. The theme of the story is that there is a girl named Bholi. Her actual name is Sulekha. We are going to read it. But due to her lower intelligence, she has been given the name Bholi. भोली एक ऐसी लड़की है जो बचपन में कहीं से गिर गई थी और कोई बीमारी उसको हो गई थी जिस कारण से वो थोड़ी सी बदसूरत हो गई और थोड़ी सी दिमाग से कम अक्ल हो गई और इस कारण से लोग उसका अक्सर मजाक उड़ाते थे। उसके पिता ने उसको एक पास ही के सरकारी विद्यालय में जब उसका दाखिला करवाया तो वहाँ एक विशेष लेडी टीचर की मदद से भोली एक धीरे धीरे आत्मविश्वासी लड़की और पढ़ी लिखी लड़की बन गई। समय आता है जब उसके पिता उसके लिए एक दूल्हा ढूंढते हैं जो किसी भी लिहाज से उसके लायक नहीं है। चूँकि ऐसी लड़कियों की शादी होनी मुश्किल है इसलिए एक ज़्यादा उम्र का दूल्हा ढूंढा जाता है। लेकिन जब दूल्हे ने दहेज की मांग की तो भोली ने आवाज़ उठाई और शादी तोड़ देती है। So this is a theme of the story. Now we are going to read what the story is going to tell us in detail. The story opens up with the introduction of a little girl named Sulekha. She was called Bholi for being a simpleton. This was so because some part of her brain had got damaged due to an injury during her childhood. She stammered and had pokemarks on her face, which she got when she had contracted smallpox at the age of 2. She was a laughing stock for everyone. Her father Ramlal was a Nambardar. He had 3 sons and 4 daughters. Bholi being the youngest of all, Ramlal was always worried about her as it seemed impossible to marry her with her having an ugly face and a dumb mind. One day the Tehsildar visited their village to inaugurate a girls' primary school. He persuaded Ramlal to send his daughter to school. Ramlal's wife suggested to send Bholi to school, although she was against sending girls to school because no boy would marry such a girl. She reasoned that as Bholi had no chance of getting married, so she could go to school. In the beginning, Bholi was frightened to leave her house, but when for the first time in her life she was dressed up and her
Her hair was washed and oiled. She felt that she was to visit a better place. In the school, she met a teacher who was very kind and polite to her. She encouraged her to study and speak with confidence. This filled hope in Bholi and she began to go to school every day. Years passed and her village upgraded into a small town with some facilities like a cotton mill, a cinema, and the primary school being converted into a secondary school. One day, Bholi's parents decided to marry her to a lame old man who was a widower but was rich and had not demanded any dowry. They thought it to be the best marriage proposal for their dumb daughter and fixed up her marriage. On the wedding day, the bridegroom arrived with great pomp and show, which filled Ramlal with joy. The groom discovered that Bholi had pock marks and demanded dowry in return for marrying her. He demanded a sum of 5,000 rupees. Ramlal begged her for mercy and even placed his turban in Bisambar's feet, but Bisambarnath did not agree. Ramlal had to give the money in order to save both his family's honor and his daughter's marriage. Bholi could not bear all this and refused to marry a greedy old man. People accused her of being shameless. The wedding party returned. The marriage ceremony ended without Bholi getting married. Her father was surrounded by grief and said that now no one would marry her and what would she do in future? To this, she replied that she would take care of her parents and when they grew old and would teach in her school. A teacher who was quietly watching all this felt proud of her decision. Actually, I have read the entire summary of the story. Now, let me translate or just tell you the story in my own language. A bit in Hindi, a bit in English. So, भोली कहानी एक लड़की की है जिसका नाम सुलेखा है। उसका नाम भोली इसलिए पड़ गया क्योंकि बचपन में थोड़ी ऊंचाई से गिरने के बाद उसके मस्तिष्क के कुछ हिस्से नष्ट हो गए या ख़राब हो गए और इस कारण से वो दिमाग से कम अक्ल हो गई। वो थोड़ी हकलाती थी और 2 साल की उम्र में उसके जो है चेचक के दाग भी उसके 2 साल की उम्र में पड़ गए। तो कुल मिला करके वो थोड़ी बदसूरत थी और कम अक्ल थी। हर कोई उसका मजाक उड़ाता। उसके पिता का नाम था रामलाल जो कि गांव के नंबरदार थे। उनके पिता के 3 बेटे और 4 बेटियां थी और सबसे छोटी बच्ची और या फिर बच्चों में सबसे छोटी भोली ही थी। रामलाल को हमेशा अपने बेटी की चिंता सताई रहती थी। ये चिंता कि भोली से शादी कौन करेगा। एक समय आया जब गांव के तहसीलदार ने गांव में एक प्राथमिक विद्यालय या प्राइमरी स्कूल की स्थापना की और उन्होंने रामलाल को जो तहसीलदार ने रामलाल को यह भी कहा कि तुम अपनी बेटियों को स्कूल में भेजा करो। रामलाल की बीवी ने पति को समझाया कि भोली को स्कूल भेजो जिससे वो कुछ तो सीखे, क्योंकि अगर वो थोड़ा बहुत कुछ सीख लेती है तो शायद शादी की कुछ चांस बनते हैं। शुरू में भोली को जब भेजा गया था स्कूल तो काफ़ी घबराई हुई थी और वो जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन जब ठीक से तैयार करके उसकी माँ ने उसको भेजा तो धीरे धीरे ही सही भोली का स्कूल में मन लगने लगा। वहाँ उसको एक ऐसी अच्छी महिला शिक्षिका मिली जो उसके प्रति बहुत दया भाव रखती थी और बहुत ज़्यादा अपनेपन के साथ उसको पढ़ाती थी। उसी महिला शिक्षिका ने भोली को कुछ सालों तक बहुत मन से पढ़ाया और भोली को आत्मविश्वास से भर दिया। भोली रोज़ स्कूल जाती थी और धीरे धीरे समय आया कि वो जो गांव था वो एक छोटे से शहर में बदल गया। कुछ उन्नति हो गई उस गांव की, जैसे कि एक सूत की फैक्ट्री वहाँ लग गई, एक सिनेमा हॉल खुल गया और जिस स्कूल
प्राथमिक विद्यालय जो कि 5वीं तक होता है, उस विद्यालय का भी अपग्रेडेशन हो गया और वो इस विद्यालय 10वीं तक हो गया। तो कुल मिलाकर के भोली जो है प्राय 10वीं तक पढ़ ली। एक दिन भोली के माता पिता सोच रहे थे कि वो किसी अच्छे वर को देख करके भोली की शादी कर दें। तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कि एक्चुअली एक विधुर था, पत्नी का उसका देहांत हो गया था और वो थोड़ा सा लंगड़ा के चलता था, एक बूढ़ा आदमी, इसका नाम बिशंबर था। तो थोड़ी उम्र में ज़्यादा था वो भोली से, लेकिन उन्होंने ये सोच करके इस रिश्ते को स्वीकार किया कि भोली को इससे अच्छा लड़का शायद ही मिले, क्योंकि भले ही वो लड़का विदुर था लेकिन वो उस लड़के के पास थोड़ी संपत्ति थी। तो माता पिता ने सोचा कि चलो जो भी है, भोली की शादी हो जाएगी और भोली खुश रहेगी। शुरू शुरू में बिशंबर नाथ ने कोई दहेज की भी मांग नहीं की थी, लेकिन जब शादी का दिन आया और बिशंबर नाथ बहुत गाजे बाजे के साथ बारात लाया, तो एक तरफ तो रामलाल खुश था, लेकिन दूसरी तरफ बिशंबर नाथ ने शायद शादी की बात तय करते वक्त भोली को देखा नहीं होगा। जिस दिन वो बारात लेके आया उस दिन उसने भोली को देखा और उसने जो है ये पाया कि इसके मुंह में चेचक के दाग हैं। दाग देख करके या थोड़ा सा भोली की थोड़ी बदसूरती देख करके बिशंबर नाथ ने जो है तात्कालिक निर्णय लिया और कुछ सोच करके उसने 5,000 रुपयों की मांग की दहेज में। उसने कहा कि इस लड़की से मैं तभी शादी करूंगा जब आप लोग मुझे 5,000 दोगे। 5,000 इस कहानी ये जब लिखी गई थी बरसों पहले, उस समय 5,000 एक बड़ा अमाउंट था। रामलाल ने प्रैक्टिकली भीख मांगी बिशंबर नाथ से और कहा कि ऐसा ना करें वरना उनकी इज्जत उछल जाएगी, और ये कह करके उन्होंने अपनी पगड़ी को उतार करके बिशंबर नाथ के पैरों में भी रख दिया, लेकिन बिशंबर नाथ राजी नहीं हुआ। रामलाल के पास कोई उपाय नहीं था, जैसे तैसे करके उधार लेकर के बिशंबर नाथ को 5,000 देने के अलावा, लेकिन तभी भोली ने ये तय किया कि वो ये शादी नहीं करेगी, लालची व्यक्ति के साथ वो शादी नहीं करेगी। उसने आवाज़ उठाई और शादी करने से इनकार कर दिया। अंततः वो दूल्हा और उसकी बारात वापस चली गई। पिता तो बहुत दुखी थे और इस चिंता में खोए हुए थे कि अब भोली से कोई शादी नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ उसकी वो शिक्षिका जिसने भोली को इतने साल पढ़ाया था और उसको उसमें आत्मविश्वास भरा था, वो शिक्षिका बेहद खुश थी। बेहद खुश थी वो शिक्षिका, क्योंकि उसने जो शिक्षा दी थी भोली को, वो शिक्षा भोली ने पूरी कर दिखाई और भोली ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा का अर्थ होता है अपने हक के लिए खड़ा होना और गलत के आगे ना झुकना। और इस तरह से इस कहानी का अंत हुआ और इस कहानी में अंत इस तरह से दिखाया गया कि भोली ने शादी करने से मना कर दिया। और जब पिता ने पूछा, माता ने पूछा, उसकी मम्मी ने पूछा और पिता ने पूछा कि तुम अगर शादी नहीं करोगी तो आगे क्या होगा, तुम्हारा भविष्य क्या होगा, तो इस बात पर भोली ने जवाब दिया कि वो बुढ़ापे में माता पिता की देखभाल करेगी और उसी विद्यालय में पढ़ाएगी जिस विद्यालय से उसने पढ़ाई पूरी की है। सो दिस इज़ ए ग्रेट डिसीजन बाय ए simpleton girl named Bholi. It shows that education can fill confidence in you and boost your self-respect, create awareness in you for your rights and give you confidence. So this is the story all about. आज हम यहीं तक पढ़ेंगे and as you know that your chapter number 3 has been deleted by the board RBSE. We will read chapter number 4 in our next class. That's all for today, and today's homework is do the initial 3 questions, question number 1, 2 and 3 of your
एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 2। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करो। दिस इज योर होमवर्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।